Hey everyone, welcome. Today we're gonna talk about some of the gradient boosting techniques, some different type of machine learning algorithms. This cage I'm wrong. Recently wrote an article on this, so let's walk through it to understand this thing. Okay, let's go ahead. Hope you guys will also be able to understand it. Yeah. So uh, here she is discussing CatBoost, LightGBM, and XGBoost. XGBoost is a very popular algorithm that is usually used for the Kaggle competition. Kaggle competition, it's like most of the time this is under like most of the people discuss about it, and I also use it many times, and it works like charm. And there are two other algorithms that we're going to discuss here. One is CatBoost, that is category boosting, and the other one is LightGBM. This is light gradient boosted machine, and the third one is extreme gradient boosting, that is XGBoost. These are all gradient boosting algorithm. Before diving into similarity and differences in terms of characteristics and performance, we must understand the term ensemble and how it relates to gradient boosting. तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को डिस्कस करने से पहले ना बात कर लेते हैं कि इनमें मतलब बेसिकली दीज आर ऑल ensemble based approaches. तो let's let's talk about, first of all let's talk about ensemble की ensemble algorithms क्या होते हैं, क्या उनका benefits है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. ठीक है. So ensemble learning is a technique that combines prediction from multiple models to get a prediction that would be more stable and generalized better. मतलब ensemble में क्या होता है मोटा मोटा कि different machine learning algorithms को हम मल्टीपल मॉडल्स को हम यूज करते हैं टू सो दैट मतलब एक वीक मॉडल होगा, दूसरा वीक मॉडल होगा, तो उन सब के पावर्स को हम यूज करके एक बेटर स्टेबल मॉडल जो कि जनरलाइज करे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है overfitting की problem in machine learning. In most of the cases, the models that we train, they work really well on the training data, but when we talk about generalizing, so at that time it becomes a bit difficult for them to generalize well. These ensembles help the model to generalize in a better way. The idea is to average out different models individual mistakes to reduce the risk of overfitting while maintaining strong prediction performance. That is something which I just mentioned कि different models के results को हम लेके उनको average out कर सकते हैं, या different kind of approaches हम use कर सकते हैं उनको combine करके, then we try to get a better results जिससे कि overfitting की problem नहीं हो. ठीक है. So now the second point is in regression, overall prediction is typically the mean of individual tree prediction, whereas regression के अंदर average कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी एवरेज मीन ऑफ इंडिविजुअल ट्री प्रेडिक्शंस, whereas in classification overall prediction is based on weighted weight with probabilities averaged across all trees. तो in classification क्या होता है कि weighted vote prediction is based on a weighted vote with probabilities averaged across all the trees. वही एवरेज कर देंगे all the trees के बेसिस पे और उसको weighted scheme से लगा के, and then we get the class, and the class with the highest probability is the final predicted class. So it's almost similar, there's not much of a difference. There are two main classes of ensemble learning methods. One is bagging, the other one is boosting. Okay, although machine learning can be a combination of both with certain variation. So bagging में क्या होता है, bagging builds model in parallel using random subset of data and aggregates prediction of all models, while boosting में क्या होता है, builds a model in sequence using the whole data with each model improving on the previous model's error. तो मोटा मोटा बैगिंग के अंदर हम बनाते हैं पैरेलल में यूजिंग रैंडम सबसेट ऑफ छोटे छोटे डेटा सेट्स को यूज करके पैरेलल में हम बहुत सारे मॉडल्स बना लेते हैं. मतलब सपोज अ मिलियन रिकॉर्ड्स का डेटा है तो उसके हम डिवाइड करके देन पैरेलल में हम मल्टीपल मॉडल्स बना लेते हैं एंड एग्रीगेट करते हैं प्रेडिक्शन को यूजिंग सम मेथड्स लाइक एवरेज आउट करना या किसी भी तरीके से करके. तो हम
then we get the prediction of model, that is bagging. different bags में हमने वो करा एक तरीके से, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, and then we figure out कि उन सब में से क्या क्या आ रहा है, and then उसको हम combine कर लेते हैं, ठीक है. The other one is boosting. Boosting method जो होता है builds model in sequence using the whole data. Boosting में हम पूरे डेटा पे मॉडल बनाते हैं और फिर जो पुराने मॉडल का होगा उसको यूज करके मॉडल को इम्प्रूव करते हैं यूजिंग द प्रीवियस मॉडल एरर. ओके, सो दो मोटे मोटे अप्रोच हो गए, बैगिंग एंड बूस्टिंग. तो बैगिंग में क्या हुआ कि मल्टीपल मॉडल्स पैरेलल में बनते हैं ऑल्दो और उन सबको एवरेज आउट या कोई एक एग्रीगेट करके हम रिजल्ट्स निकालते हैं. बट इन बूस्टिंग वी एक्चुअली मेक मॉडल्स इन सीक्वेंस यूजिंग द होल डेटा. पूरे डेटा के साथ ही हम बनाते हैं सीक्वेंस वाइज और प्रीवियस मॉडल के एरर को हम कंसीडरेशन में लेते हैं, उससे हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. CatBoost क्या होता है? CatBoost, LightGBM, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन एंड एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट आर ऑल वेरिएशंस ऑफ द ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम. ये जो तीनों हैं ये ग्रेडियंट बूस्टिंग के हैं, नाम से ही पता चल रहा है. Now you have understood the difference between bagging and the boosting. We can move on to differences in how the algorithms implement gradient boosting. तो CatBoost, LightGBM और XGBoost के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रही है और she has shared a table जिसमें कि उसके बारे में सारा है. Wow, that's an amazing amazing, that seems to be amazing data. So CatBoost was developed by Yandex, ठीक है. But LightGBM was developed by Microsoft and XGBoost by DMLC. तो रिलीज ईयर की अगर बात की जाए कि रिलीज कब हुआ था, CatBoost is a very recent one, like among the three. It was released in 2017 and XGBoost was released in 2014, but LightGBM was released in 2016. So ट्री का सिमेट्री की बात की जाए तो ये सिमेट्रिक होता है CatBoost में. LightGBM में एसिमेट्रिक भी होता है. लीफ वाइज माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा अलग ही चलता है यार हर जगह ना, तो वो कुछ करते ही हैं इस तरीके से. एंड एसिमेट्रिक ही होता है. एंड XGBoost का भी एसिमेट्रिक लेवल वाइज ट्री ग्रोथ होता है, ठीक है. स्प्लिटिंग मेथड ग्रीडी मेथड होता है, उसमें ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग और प्री सॉर्टेड एंड हिस्टोग्राम बेस्ड एल्गोरिथम. ओके, न्यूमेरिकल कॉलम्स हाँ होते हैं, सब में सपोर्ट कर लेता है. कैटेगोरिकल कॉलम भी सपोर्ट कर लेते हैं मोस्टली में, ठीक है. टेक्सचुअल कॉलम, ओके, टेक्सचुअल कॉलम सपोर्ट करता है CatBoost, बट ये दोनों नहीं करते, ठीक है. सपोर्ट बैग ऑफ बर्ड एंड naive Bayes BM25 to calculate the numerical features from the text data, ठीक है. मिसिंग वैल्यूज, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, तीनों कर लेते हैं, ठीक है. तो ये चीजें हो जाती है. कुछ खास इसमें काफी डिफरेंस तो है. मोटा मोटा स्प्लिटिंग मेथड में डिफरेंस है जो कि सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है. ट्री सिमेट्री और स्प्लिटिंग मेथड ही सबसे डिफरेंशिएट करने वाली चीजें हैं. तो ट्री सिमेट्री की बात कर लेते हैं. ट्री सिमेट्री क्या है? इन CatBoost सिमेट्रिक ट्रीज आर बैलेंस और बैलेंस ट्रीज रेफर टू स्प्लिटिंग condition being consistent across all the nodes at the same depth of the tree. LightGBM and XGBoost on the other hand results in asymmetric trees, meaning splitting conditions for each node across the same depth can differ, ठीक है. हर मतलब एक ही लेवल पे जो डेप्थ पे होगा उन सब में सिमेट्रिकली होगा. मतलब अगर एक रूट का ऑन द लेवल 2, 3, 4 पे वो मतलब स्प्लिट कर रहा है जिस अप्रोच से, वही अप्रोच हम यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है. तो काइंड ऑफ बैलेंस होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा वो अप्रोच. बट इसमें एसिमेट्रिक हो सकता है कि भाई कोई लीफ नोड होगा, कोई उसी लेवल पे कोई रूट नोड होगा, दैट कैन हैपन, ठीक है. सिमेट्रिक मोटा मोटा यही जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर सारे लीफ होंगे या तो ये सारे रूट नोड्स होंगे एक लेवल पे, ठीक है. बट इन एसिमेट्रिक देयर कैन बी इंस्टेंसेस जहाँ पे ये रूट नोड बन सकता है बट ये लीफ नोड है. तो इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं. For symmetric trees, this means the splitting condition must result in lowest loss across all nodes of the same depth. Benefits of balanced architecture include faster computation and evaluation and control overfitting. तो symmetric trees में क्या होता है कि splitting condition must result in lowest loss across all the nodes. Splitting condition हमें lowest loss find out करने में हेल्प करती है. तो इसमें overfitting
के थोड़े से कम चांसेस होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली कम चांसेस होते हैं, कंट्रोल कर लेती है और जल्दी जल्दी कंप्यूटेशन होता है और इवैल्यूएशन होता है। इवन दो LightGBM एंड XGBoost आर बोथ एसिमेट्रिक, पर इसका मतलब ये नहीं कि एसिमेट्रिक में नहीं काम करता है, एसिमेट्रिक होते हैं बट ग्रोज लीफ वाइज व्हाइल XGBoost ग्रोज लेवल वाइज। तो दोनों में XGBoost और LightGBM में क्या डिफरेंस है? LightGBM ग्रोज हॉरिजॉन्टली लीफ वाइज करता रहता है, बट जो XGBoost है इट वर्क्स लाइक इन द लेवल वाइज फंडे से, ठीक है। टू पुट इट सिंपली वी कैन थिंक ऑफ LightGBM as growing the tree selectively, resulting in smaller and faster models to compare to XGBoost. So we can think of LightGBM as growing the tree selectively, resulting in smaller and faster models compared to XGBoost. तो LightGBM एक तो बेसिक सी बात है, XGBoost के बाद आया है, अभी 2014 में XGBoost आया था। LightGBM will definitely be an improvement of XGBoost। तो LightGBM में क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टली होता है, तो इसमें टाइम से होता है, जल्दी मॉडल बनते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू XGBoost, थोड़ा बेटर भी रहता है, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड की बात करें, सॉरी, splitting method की अगर बात करें, splitting method refers to how splitting condition is determined. In CatBoost, a greedy method is used such that a list of possible candidates of feature split pair are assigned to the leaf. Splitting method की अगर बात करें in CatBoost, एक greedy method यूज होता है such that list of possible candidates of feature split pairs are assigned to the leaf as the split and split. In CatBoost, a greedy method is used such that a list of possible candidates of feature split pairs are assigned to the leaf as the split, मतलब जो भी पॉसिबल कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हम फीचर स्प्लिट के लिए यूज कर सकते हैं, जो भी हैं उन सब कैंडिडेट्स को हम ट्राई करेंगे उनको, एंड एज अ लीफ टू द लीफ एज द स्प्लिट, और उसके बाद जो स्प्लिट का रिजल्ट होगा, जो सबसे कम पेनल्टी दे रहा है, जो सबसे कम लॉसेस दे रहा है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो एक ग्रीडी अप्रोच है मोटा मोटा, उस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक है। एंड इन LightGBM क्या करते हैं, ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग अप्रोच यूज होती है, ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं कि ऑल द डेटा इंस्टेंसेस जिनके ग्रेडियंट वैल्यूज ज्यादा आते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, इट्स द स्लोप ऑफ द टैंजेंट ऑफ द लॉस फंक्शन। ग्रेडियंट न्यूरल नेटवर्क्स में जो बेसिक चीज होती है वही कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट ऑफ द लॉस फंक्शन, एंड इट कीप्स ऑल द डेटा इंस्टेंसेस विद द लार्ज ग्रेडियंट, जो जिनके ग्रेडियंट वैल्यू ज्यादा होता है उन सारे इंस्टेंसेस को रख लेता है। और जो रैंडम सैम्पलिंग होती है दैट इज डन विद द डेटा इंस्टेंसेस विद स्मॉलर ग्रेडियंट्स, ठीक है, जिनकी वैल्यूज कम होती है ग्रेडियंट वैल्यूज, उनको उनमें हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि दिस सैम्पलिंग टेक्निक रिजल्ट्स इन लेसर डेटा इंस्टेंसेस, इससे डेटा इंस्टेंसेस कम हो जाते हैं तो ट्रेनिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, और ट्रेनिंग जल्दी जल्दी हो जाती है, मोटा मोटा सिंपल सी बात है। और डेटा पॉइंट्स विद द लार्जर ग्रेडियंट्स हैव हायर एरर्स, एंड जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनका ग्रेडियंट ज्यादा है उनमें एरर्स ज्यादा होते हैं होने के चांसेस, एंड वुड बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल स्प्लिट पॉइंट। तो इनको इम्पोर्टेंट है, उनको कंसिडरेशन में रखना, जबकि जो डेटा पॉइंट्स होते हैं विद स्मॉलर ग्रेडियंट, जिनमें मतलब स्लोप की वैल्यू जो मतलब इतने वो नहीं होते, तो ग्रेडियंट वैल्यू स्मॉल होती है, हैव स्मॉलर एरर, उनका एरर ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, पर and they would be important for keeping accuracy for the learned decision tree। तो ये accuracy maintain करने के लिए तो बहुत ही फर्जी सा एल्गोरिथम है कि भाई ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग, तो इसमें जिन डेटा इंस्टेंसेस का ग्रेडियंट वैल्यू ज्यादा होता है उनको हम सारे इंस्टेंसेस को उन सारे इंस्टेंसेस को हम कंसीडरेशन में रखते हैं, लेकिन पर जो ग्रेडियंट वैल्यूज जिनकी कम होती है हम उनको उनमें हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट XGBoost।
इस LightGBM में इस अप्रोच को यूज करने से डेटा इंस्टेंसेस कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से स्पीड ऑफ द ट्रेनिंग इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रह जाती है, क्योंकि हम उनको ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिन इंस्टेंसेस में ग्रेडियंट ज्यादा है, जिनमें एरर के चांसेस ज्यादा है। तो वी ट्राई टू मतलब फोकस ऑन दैट पार्ट अ बिट मोर देन द डेटा इंस्टेंसेस जिनका ग्रेडियंट वैल्यूज कम हो। ठीक है, now let's talk about the XGBoost approach। ठीक है, तो XGBoost was developed by DMLC, है ना, DMLC in 2014। ये भी asymmetric है, और इसमें क्या होता है, let's see। XGBoost में क्या होता है, इट्स अ प्री सॉर्टेड एल्गोरिथम जिसमें हम सारे फीचर, जो भी फीचर्स हैं उन सबको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इनमें सॉर्ट करा जाता है उनको ऑन द बेसिस ऑफ फीचर वैल्यूज, और उसके बाद एक स्कैन होता है लीनियरली टू डिसाइड द बेस्ट स्प्लिट। ठीक है, एंड द फीचर वैल्यू दैट रिजल्ट्स इन द मोस्ट इंफॉर्मेशन गेन, जिससे हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो रहा है। लाइक डिसीजन ट्री में जो इंफॉर्मेशन गेन वाली अप्रोच है वही सेम चीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जो जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो रहा है उसको हम, उस सिलेक्शन को हम रख लेते हैं। ठीक है, the histogram based algorithm works the same way, but instead considering all the feature values, and instead of considering all the feature values, it groups feature values into discrete bins। but सारे feature values को नहीं लेते हम, feature values को शुरुआत में लेते हैं, उनको sort करते हैं, उसके बाद scan करके हम select करते हैं best fit के जो भी मतलब हमें सबसे ज्यादा अच्छा feature लग रहा है उस तरीके से हम करते जाते हैं। पर instead of considering all the feature values, it groups feature values into discrete bins। फीचर वैल्यूज को हम सॉर्ट करेंगे, पर हम सबको यूज नहीं करेंगे, उनको हम डिस्क्रीट बिन्स में रख के और चेक करेंगे कि कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा कॉम्बिनेशन, विच इज मोर एफिशिएंट देन द, सो इस वजह से ये प्री सॉर्टेड इज मोर एफिशिएंट देन द प्री सॉर्टेड एल्गोरिथम, दो ऑल्दो स्टिल स्लोअर देन जीओएसएस। पर ये जो ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग से थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, so that's all about XGBoost, LightGBM and CatGBM, CatBoost। ठीक है, अभी ये और एक चीज बता रहा है कि टाइप्स ऑफ बूस्टिंग, improving accuracy, speed and controlling overfitting, performance comparison। So let's read about these also, although let's talk about the types of boosting। तो there are variations in how data is selected for training। ठीक है, ordered boosting में क्या होता है, ordered boosting refers to the case जब each model trains on the subset of data and evaluates another subset of data। तो ordered boosting में हम सबसेट ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं। ठीक है, और इवेल्युएट करते हैं दूसरे सबसेट पे। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्डर्ड बूस्टिंग इंक्लूड इंक्रीजिंग रोबस्टनेस टू अनसीन डेटा। अनसीन डेटा मतलब हम काफी अच्छे वर्क करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो कैटेगोरिकल कॉलम्स के बारे में बात करते हैं, मतलब ये कुछ खास वो था नहीं, देयर वेरिएशन ऑर्डर बूस्टिंग। कैटेगोरिकल कॉलम्स के बारे में बात करते हैं, तो पैरामीटर्स फॉर कैटेगोरिकल कॉलम्स फॉर डिफरेंट एल्गोरिथम आर एज फॉलोज। CatBoost, cat features one hot max size, LightGBM categorical feature, XGBoost any। okay, improving accuracy, speed, controlling overfitting in ensemble learning, averaging the prediction across different models help with overfitting। ensemble मॉडल में क्योंकि एवरेज ऑफ द प्रेडिक्शन होता है, तो इस वजह से जनरलाइज अच्छा कर लेता है, ओवरफिटिंग के चांसेस कम है। however as with any tree based algorithm there is still a possibility of overfitting। जैसे कि ट्री बेस्ड एल्गोरिथम में चांसेस तो हमेशा रहते ही हैं। ओवरफिटिंग कैन बी हैंडल्ड इन स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट, enabling cross validation, early stopping and tree pruning। तो इसमें जैसे कि होता है कि ओवरफिटिंग को हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं। ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन वाल स्प्लिट कर लेंगे, डेटा स्प्लिटिंग, उसके बाद इनेबल क्रॉस वैलिडेशन इनेबल करके, अर्ली स्टॉपिंग इनेबल करके, ट्री प्रून करके। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन द डिफरेंट एल्गोरिथम्स we will focus on controlling overfitting using model parameters। For the sake of comparing the different model algorithms, we'll focus on controlling overfitting using model parameters। Note that to control
the complexity of the model, XGBoost uses the parameter max depth, whereas LightGBM uses the parameter number of leaves. To control the complexity of model, XGBoost क्योंकि vertically काम करता है तो इसमें max depth लेगा, और जो कि LightGBM है that works horizontally, तो इसमें number of leaves लेके चलेगा वो, ठीक है। तो ये तो एक टेबल है, इसमें काफी कुछ डेटा है, बट आई डोंट थिंक अभी when you implement it then we can definitely go through it. बाकी performance comparison, there are various benchmarking on accuracy, speed, performance on different data sets. I find it hasty to generalize algorithm performance over a few data sets, especially if overfitting and numerical categorical columns are not properly accounted for. However, generally for literature, from literature, XGBoost and LightGBM yield similar performance, with CatBoost and LightGBM performing much faster than XGBoost, especially for the larger data sets. तो XGBoost और LightGBM वो almost similar से perform करते हैं, with the CatBoost and LightGBM performing faster, क्योंकि ये थोड़ा सा approach में difference है इनका, तो ये थोड़ा जल्दी काम करता है as compared to XGBoost, ठीक है। और स्पेशली लार्ज डेटा सेट होगा तो ये आपको सिग्निफिकेंटली डिफरेंस दिख पाएगा। होप यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्री मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स। डेफिनेटली ये जो मतलब थोड़ा सा तो आइडिया लग गया ना यार कि कैट बूस्ट, लाइट जी में और एक्जी बूस्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है, कि इन द प्रैक्टिस डेटा साइंटिस्ट यूजुअली ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ एमएल एल्गोरिथम अगेंस्ट देयर डेटा, सो डोंट रूल आउट एनी एल्गोरिथम जस्ट yet. Besides understandability, performance, and timing consideration, in choosing between different algorithms, it is crucial to fine-tune the model by the hyperparameter tuning, controlling overfitting via pipeline architecture or hyperparameters. तो ये चीजें भी important है कि आप कैसे मॉडल बना रहे हो, डेटा कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So here are some of the links. I would definitely recommend you to go to this blog post. You can check it out on Towards Data Science. It's written by Kejan Wong, and she has around 450 plus followers. Consider giving a thumbs up to the video and follow this author as well. Thanks for watching. Hope you guys like this video, and thanks to Kay for writing this amazing blog post. Thank you.